जगन्नाथ आज रंजन भाई भल कथा मन रख। आज आलोचना करवा काली रूप कलंकी प्रकाश। काली रूप कलंकी प्रकाश ठाकुर अभिराम परमहंस भाषा ठाकुर कहती मैंने प्रकृत भक्त जहाँ घरे प्रभु को करुणा थिब से कौन है काली पणत तले रही देखना ना एवं ये प्रकृत भक्त नुह से काली खड़गे नाश जी एक कथा लिखी एमती आशा आ कई लिखी ना बुझे अच्युत से कथा गोटे ठारिकी कह प्रभु काली रूप कौन करेंगे दुष्ट को संहरण करेंगे लीला विचित्र ना से भी अच्युत महापुरुष लिखिं महाप्रभु जो आसवे पंचभूत दुष्ट को संहरण करेंगे देखना कहीं लिखिं कहीं जल रूप कौन कह जगत ग्रासी कहीं पवन रूप उड़ाई नेबी कहीं मु व्याधि रूप आसवि एम सब लिखी नहीं कहीं मु हाथ में खड़ा नुह खंडा 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 धरी कौन करी दुष्ट को संहरण करी एमती अनेक कथा लिखिं किंतु आज आलोचना करवा प्रभु काली रूप कौन करेंगे दुष्ट को संहरण कर तमर मत आसीपे प्रभु तो जन्म हे नर अंगे कलिंगी अवतार हे जयदेव लिखिं मिलच निब निधन कर बाल धूम के तुम पकिम कराल ये सब ध्रुत कलंकी शरीर जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ प्रभु कौन है अशुभ पर आहरण करेंगे हाथ में खंडा धरिकी दुष्ट को संहरण करेंगे ये कथा कहते फिर ठाकुर अभिराम परमहंस कहीं कहले काली रूप काली खड़गे विनाश हे जी कही न पारे काली खड़गे विनाश हे जी कहे काली पणत तले रहे अच्युत महापुरुष कहते कली रे कलंकी काली रूप परिप्रकाश सब ठीक कहीं मनरक छुआ माँ रूप प्रभु आसिक दुष्ट संहरण करती तमें समस्ते जानिछ महिषासुर को माइला किए दुर्गा माइला आमे प्रमाण दबू महिषासुर को नारायण माइला प्रमाण अच्छी महिषासुर को किए मारी नारायण मारी एमती शास्त्र लेखा अच्छी से शास्त्र को कहीं संसार काटि पारे शास्त्र किए ना सकल शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबे भागवत से पदटी लेखा अच्छी बुझी ना द्वापर जुगर लीला कथा ठाकुर जन्म है कौटी मथुरा माँ जगधात्री दुर्गा जन्म है कौटी गोपुर नारायण वसुदेव कहते बापा मत तुम कौन कर गोपुर छाड़ी से गोपपुर गोटे कन्या जन्म हो तुम नहीं आस ये से बुझी हूँ गोपुर छाड़े कृष्ण को बिजुली कन्या को आइले क्या मथुरा को जो आइले कंस खबर पाइला वसुदेवर गोटे कन्याटी कारण नारद आगुरी कही क्या कंस को जो वसुदेव बहागर है रथ नहीं आसूची तू एत आनंद कौन नहीं जाऊँ मन तोरी भौणी गर्भ अष्टम गर्भ जी जात हम से ते मार
ନା ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ବସୁଦେବ କଂସ ଜାଣିପାରିଲାନି ପୁଅ ହବ ନା ଝିଅ ହବ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ କଣ ହେଲେ ଗଲେ ଭାରି ଗୋପପୁରକୁ, ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଆଇଲେ ମଥୁରା। କିନ୍ତୁ ନାରଦ କହିଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏକଥା କଂସକୁ କହିଦେଇଥିଲା ଆଗରୁ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ଆସି ଦେଖିଛି ଦେବକୀର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି, ଦେବକୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ କହୁଥିଲ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତମକୁ ସେ ବିନାଶ କରିବ। ଇଏ ତ ପୁଅ ନୁହଁ, ଇଏ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଇଏ କଣ ସତେ ତମକୁ ବିନାଶ କରିବ? ବୁଝିପାରୁଛି? କଂସ ସେଇଠୁ କହୁଛି ଭଉଣୀ କି, କାହାକୁ? ଦେବକୀ। ହେ ଦେବକୀ ତୁ ମନେ ରଖ, ନାରଦ ମତେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ କହୁନୁ, ଦିନେ ବୈରଲୋଚନ ରୂପକ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା, ବ୍ରହ୍ମାଠୁ ବର ପାଇଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ଚୁଟି ମୂଳରେ ତାର କଣ ହେଲା ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୈରୋଚନ କଣ ହେଲା, ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ହେଲା। ସେ କେମିତି ମରିବ କାହାର ଆଉ ମନ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବୈରଲୋଚନର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବୈରଲୋଚନ କଣ ହେଲେ, ବିବାହ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ବୈରଲୋଚନ କହୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି, ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତମେ ଅମର। କଣ ମୁଁ ଅମର, ତମେ କେବେ ହେଲେ ବିଧବା ହବ ନାହିଁ। ନା ସତରେ? କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସତରେ? ନା ହଁ। ନାରାୟଣ କଣ କଲେ, ମାୟାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କହିଲା ତମେ କେମିତି ମରିବ, ମୁଁ କଣ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତମକୁ କେବେ ହେଲେ ମାରିବି? ନା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏ କଥା? ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ବର ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ମନ ନାହିଁ। ନା କଣ କଥାଟା ବା? ନା ତୁ ମୋ ଯୋଉ ଚୁଟିଟା ଦେଖୁନୁ, ଏଇ ଚୁଟିଟାରେ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି। ଏ ଚୁଟିଟାକୁ ଯିଏ ଓପାଡ଼ି ଦେବ ମୁଁ ସେଇଦିନ ମରିଯିବି। ନାରାୟଣ ଏ କଥା ଜାଣିଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ନାରୀ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଠୁ ଥିଲେ ଥିଲେ କଣ କଲେ, ଚୁଟି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଲେ ଓପାଡ଼ି ଦେଲେ ହେଲା। ବୈରଲୋଚନ ମଲା। ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ତୁକି ନ ଜାଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଅସୁର ଠାରେ ସେ ନିର୍ଦୟା। ତୁ ଜାଣିନୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କଂସ କହୁଛି କାହାକୁ? ଦେବକୀ। ହେ ଦେବକୀ ତୁ ଜାଣିନୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା, ଅସୁର ଠାରେ ସେ ନିର୍ଦୟା। ସେ ଅସୁରଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ସିଏ। ନାନା ରୂପରେ ହୋଇଯାତ, ଦେବଙ୍କୁ କରାଏ ନିପତ। ସେ ବହୁତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଇଏ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ବୈରଲୋଚନ ବୀର ଥିଲା, ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ତାକୁ ମାଇଲା। ଯୋଉ କଥା ଆଗରୁ କହିଲି, କହିଲେ ବୈରଲୋଚନ ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ବା ବୀର ଥିଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ବଳେ ତାକୁ ମାରିଥିଲା। ମହିଷା ମାରେ ଦୁର୍ଗା ହୋଇ, ତା ମାୟା ନ ଜାଣିଲ ତୁଇ। ଯୋଉ ମହିଷାସୁରକୁ ନୁହଁ, ସେଇ ନିଜେ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ମାରିଥିଲେ। ଆମ କଥାଟା ବୁଝୁଥା। ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ମତେ, ଇଏ ମତେ ମାରିବ ଚୁକତେ। ମତେ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ମାରିବ।
अष्टम गर्भे मो बैरी यार हस्ते मुहि मुहि मोर अष्टम गर्भरे तो अष्टम गर्भरे जी जन्म हम सी मत मार तेणु ये कहीं विष्णु माया करके न मारी बुझी सेमती ये कथाटा मन रखी था जेमती जुगे जुगे नारायण कौन कर माँ रूप धारण कर दुष्ट को संहरण करमती जगन्नाथ माँ रूप धरिकी दुष्ट संहरण कारण आमर कहती जगन्नाथ स्वयं होती कि से दक्षिण कालिका उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलांध्र तु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका शास्त्र प्रमाण दिए शूलपाणी हेले किए से बलभद्र ये होती कि से स्वयं उग्रतारा भुवनेश्वरी होती कि से माँ सुभद्रा दक्षिण कालिका होती कि से स्वयं जगन्नाथ बुझी होची सेठी नारी रूप कौन कले संहरण कले जुगे जुगे कौन नारी रूप संहरण कर किए से कौन कंस कौची क्या भौणी की कौची देव कि सेमती महापुरुष कहते पड़े पुराण पड़े भितर को महापुरुष कहले कली जुगरे अंतिम पर्यायर काली रूप अनेक विनाश करिवे कली रे कलंकी काली रूपरे दुष्ट म्लेच्छ नासी बेटी संसारे निष्काम भावना जा हृदय थिव काली पणंतरे निश्चय रही कि सुंदर कथा बोले हे राम मन रख दिने महाप्रभु काली रूप कौन करेंगे दुष्ट को संहरण करेंगे कारण जुगे जुगे जन्म होती काली रूप लीला कर सत्य जुगे दुर्गा हेले त्रेतया दुर्गा हेले द्वापरे दुर्गा हेले कली रे काली हेले असंभव कौन बुझ तेणु महाप्रभु कौन करेंगे पंचभूत दुष्ट संहार करेंगे सत्यता पुणी शक्ति की धारण करी दुष्ट संहारण करेंगे सत्यता महापुरुष वाणी केवल अन्यथा हब ना यही कथा टी खोलिकी लिखिद कली रे कलंकी काली रूपरे दुष्ट म्लेच्छ नाश जीवेटी संसारे निष्काम भावना जाहृदे थिब काली पणतरे निश्चय रही एटी अच्युत महापुरुष जहाँ कहले सेठी ठाकुर अभिनव सुंदर से कथा तेणु काली जीए कलंकी सीए काली जीए कालिया सीए काली जीए जगन्नाथ सीए से समस्त सदिशा पूर्ण हो बोल आनंदे को हरि बोल।